Okay, students, there was a query from some students about the plotting of matrix in Flinders interaction analysis. Now, I'll be explaining you the plotting, and I'll also be taking it further to the ratios which I did not discuss in the previous video. Now, please see. I have this is your JS Walia only, and I have already sent you images of this book. And now the college is open. You can get it from the library. Take an Nandbhushan book also. It is also available in the library. Nandbhushan and J.S. Walia. But a Nandbhushan book is only in English. Now, I have just carry forwarded these entries which were given in J.S. Walia, and this is page number 451. Okay. Now, this was a sample we were using how to plot the matrix. I told you the expert is sitting at the back and he is observing the pupil teacher or the in-service teacher who is teaching. Now, it is customarily to start with the 10 and to end with the 10. Just see here. They have taken very few entries, and I've explained you earlier also. We can plot up to 500-600 tallies because 40 minutes period, and we have to make an observation after 3 seconds. Now, see, we start with the 10 and we end with the 10. Why? Because we assume that before the class also there is silence, and 10 stands for silence, and after the class also it is silence. So I just took this entries and I've written them here so that it's easy for you to understand. This is 10, 5, 4, 3, 10, 6, and so on. Now I told you how we have to pair up like this: 10, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 10, 10, 6, 6, 2, 2, 6. Now what we do, we pick up one pair. We pick up 10 and 5. And I told you it is row first and column later. Row means this is the row. 1 row, 2 row, 3 row, 4 row, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And so these are the rows. This is just one sample they have taken to explain you. I picked up this 10 and 5. Now this is 10th row and 5th column. I mark 1. You can mark it 1 because they have taken very small sample. In case of larger samples, instead of 1, we can put a tally like this. Here. 1 tally you can put. Now I told you other day also. Now see please. Randomly I'm taking. Say for example, I was taking this box and 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे ऐसे हम टैलीज़ बनाते हैं. तो 5 की एक टैली बन गई. जनरली आपके पास बहुत सारी टैलीज़ आएंगी क्योंकि आपके पास 500-600 ऑब्जर्वेशंस होएंगी. तो अब हम सिर्फ ये केस बात करते हैं 10 and 5. 10 in the row and 5 in the column. पेपर में बनाने के लिए आप इतना सा सैम्पल ले सकते हो. दैट्स मोर देन इनफ. नाउ नेक्स्ट पेयर 5 and 4. नाउ ये जो इसका कॉलम था मतलब 10, 5. 10 इन द रो, 5 इन द कॉलम. अब नेक्स्ट के लिए जो कॉलम में था वो रो में चला जाएगा. 5 इन द रो एंड 4 इन द कॉलम. 5th रो एंड 4th column, and we again have one entry. I pick up the next. Now 4 was in the column. Now I'll go in the row. 4th row and 3rd column. 4th row and 3rd column. This is one entry. Now again see 3 and 10. 3rd row and 10th column. See. 3rd row and 10th column we have an entry. Then 10 and 6. 10th row and 6th column there is an entry. Then we have 6 and 2. 6th row and 2nd column we have one entry. Then we have 2 and 6. 2nd row and 6th column we have one entry. Now 6 and 1. 6th row and 1st column. Here we have an entry. Then 1st row and 8 column. 1st row and 8 column we have an entry. Then 8th row and 2nd column. 8th row and 2nd column we have an entry. And the last pair is 2 and 10. So 2nd row and 10th column we have an entry. I hope it's clear now. Now what we do, we add up all the rows
from here, like in the first row we have just one entry, in the second row we have one and two entries, ऐसे हम इसको ऐड कर देते हैं। ये जस्ट एक सैम्पल है। और आप देखोगे कि फर्स्ट रो की एडिशन हमेशा फर्स्ट कॉलम के एडिशन के बराबर होगी, सेकंड रो की एडिशन सेकंड कॉलम के बराबर होगी, थर्ड रो की थर्ड के, ऐसे। इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सैम्पल है। जब आप बड़ा सैम्पल लोगे, ये नेक्स्ट पेज पे आप देखो, पेज नंबर 453 पे थोड़ा बड़ा सैम्पल लिया हुआ है, इट इज़ फॉर 421 एंट्रीज। अब इस केस में आप कैसे चेक करते हो कि मैंने प्लॉटिंग ठीक की है? इस केस में आप देखोगे कि ये देखिए 12 and 12 here, 32 here, 104 here, 105 here, and so on. So इस तरह से आप चेक कर लेते हो। and some of the rows here, जैसे इसमें 11 आया है, is always equal to sum of the columns. Similarly here in the bigger one you can say sum of the rows and sum of the columns is equal, क्योंकि कॉलम देखिए इस तरफ को ऐड होएंगे ना, और रोज़ इस तरफ को ऐड होंगे, और यहाँ पे आप एडिशंस ले दोगे। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी प्लॉटिंग की बात। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था, इसमें हमने मोटी मोटी जो रेशोज़ उस दिन बताई थी मैंने आपको, टोटल टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक कैसे निकाल सकते हो, और टीचर्स डायरेक्ट टॉक, टीचर्स इनडायरेक्ट टॉक, ये सब बताया था आपको। ये दोबारा से हम देख लेते हैं। अब इस वाली मैट्रिक्स का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें पहला आ गया आपके पास टोटल टीचर टॉक कितनी हो रही है। अब प्लीज़ आई एम जस्ट गोइंग अगेन बैक, दिस इज़ पेज नंबर 448 मेरी बुक में। ये मेरे पास एक्चुअली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाय JS वालिया नहीं है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय JS वालिया है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी, कोई स्टूडेंट ले गया। ये है, तो आप अपने मतलब पेजेस देख लेना कहाँ पे हैं आपके। तो ये जहाँ पे टीचर टॉक एक्सप्लेन किया हुआ था कि कौन कौन से कोड किसके लिए स्टैंड करते हैं, एक प्लीज़ आप इसमें भी देखना, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना। जो फ्लो चार्ट है 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5 6 एंड 7, ठीक है। तो क्योंकि ये कोड्स ऐसे ही लर्न करनी है। फर्स्ट का मतलब एक्सेप्ट फीलिंग, सेकंड का प्रेज एंड इनकरेज, थर्ड एक्सेप्ट आइडियाज़, फोर्थ आस्किंग क्वेश्चन। तो ये टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, आई होप यू रिमेंबर, है ना। तो 6 5 6 7 5 फिफ्थ कैटेगरी होती है लेक्चरिंग, 6 डायरेक्टिंग, 7 क्रिटिसाइजिंग। तो ये कोड्स ऐसे ही याद करने हैं। 8 मतलब स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड 9 स्टूडेंट इनिशिएट कर रहा है, 10 इज कैटेगरी साइलेंस और कन्फ्यूजन। अब मैं वापस जाती हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। अब आपको पता है फर्स्ट 7 जो कैटेगरीज हैं वो टीचर की हैं। अगर मुझे टोटल टीचर बिहेवियर निकालना है कि क्लास में टीचर कितना बोला, तो मैं फर्स्ट से लेके 7 या तो कॉलम्स ले लूँ, यहाँ से ऐसे ऐड कर लूँ, रोज़ भी ले सकती हूँ मैं, फर्स्ट से 7 इस तरफ भी ऐड कर सकती हूँ। तो उससे पता चल जाएगा कि टीचर कितना क्लास में बोला। अब ये आपका टोटल करके 294 आता है। 1 12 32 104 105 27 एंड 13, यहाँ तक आप ऐड करते हो तो 294 आता है। 294 को आप डिवाइड करोगे विद द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 421 से, तो आपके पास 69.8 जो है वो आ जाती है टीचर की बिहेवियर, कि टीचर टॉक कितनी हुई है। अब इसमें से आप निकालना चाहते हो टीचर का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। देखिए इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, 1 2 3 4, है ना। ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जब टीचर डायरेक्टली नहीं बात कर रहा, टीचर बच्चों के किसी एक्टिविटी को जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे एक्सेप्ट फीलिंग्स है, बच्चे ने कोई फीलिंग दी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली बात कर रहा है। तो 1 से 4 तक जो है वो टीचर की इनडायरेक्ट टॉक है। अब आप उसी तरीके से 1 से 4 तक के कॉलम्स में जो एंट्रीज़ हैं 1 12 32 104, इसको ऐड करिए, ये आपके पास आ रहा है 149, इसको टोटल के साथ डिवाइड करिए, ये परसेंटेज आ गया। इसी तरह से डायरेक्ट टॉक निकाल लीजिए। स्टूडेंट बिहेवियर के लिए आप सिर्फ 8 और 9 निकाल लोगे कि स्टूडेंट ने टॉक कितनी की, 8 और 9 44 और 66, ये आपके पास यहाँ पे 110 आ गया। इसको आप 421 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये रेशो आ गया। और साइलेंस और कन्फ्यूजन के लिए सिर्फ कैटेगरी नंबर हम 10 देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपने जब एडिशन करनी है 69.8 है। अब इस वाले सैम्पल में टीचर टॉक हो रही है, 26.2 आपकी स्टूडेंट टॉक हो रही है, 4 आपकी साइलेंस और कन्फ्यूजन है। तो ये 100% बन गया टोटल, ठीक है। तो टीचर, अब आप देखोगे कि जनरली यही हमारी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, जो हमारी क्लासरूम्स हैं वो टीचर डोमिनेटेड ही होती हैं। अब इसमें एक आप जो एंट्री मैं पहले आपको समझा रही थी, अब ये देखिए, जैसे ये 62 है या 26 है, 38 है, 48 है, ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि उतनी बार टैली लगी, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 उतनी टैलीज लगी हैं। लेट मी टेक एनी एग्जाम्पल। अब मैं आपके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेती हूँ 5 का। 5 का मतलब लेक्चर फॉलोड बाय अ लेक्चर। अब टीचर लेक्चर देगी तो 1 मिनट का तो देगी नहीं, पहले आप कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हो, 5 मिनट तो एक्सप्लेन करते हो, यानी 3 सेकंड बाद आपका 5 जो ऑब्जर्वर है वो 5 लिखता जाएगा। 5 इन द रो, 5 इन द कॉलम। अब ये देखिए यहाँ पे 62 एंट्रीज़ हैं, तो मतलब इतनी टैलीज़ लगी हैं। तो ये जब हम एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली भी करवाते होते थे, अब प्रैक्टिकल आपका ईटी का नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ हम प्रैक्टिकल्स भी करवाते थे। तो प्रैक्टिकल में ईटी के प्रैक्टिकल में हम ये बॉक्स जो है इसको थोड़ा बड़ा बना देते थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता था कि 5 वाला कॉलम जो है उसमें ज़्यादा एंट्रीज़ होने वाली हैं। तो ये सिंपल है, ये बीएड लेवल का है काम जो मैंने यहाँ तक आपको करवाया था। मैंने उस दिन उसको लंबा नहीं किया, एक तो वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि विदाउट फेस टू फेस कंटैक्ट में आपको रेशोज़ कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर आपने इतना काम कर लिया, इतना आपको समझ आ गया, तो आज मैं आपके साथ अब नेक्स्ट रेशोज़ भी डिस्कस कर रही हूँ। ये बीएड लेवल तक है। अगर आप इतना लिखते हो पेपर में तो इट्स जस्ट अप टू बीएड लेवल। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, टीचर टॉक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड 4th इज़ साइलेंस और कन्फ्यूजन। अब हम थोड़ी सी और रेशोज़ देख रहे हैं। इसके लिए अब आई एम टेकिंग द नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बोल रही हूँ आनंद भूषण की। इसमें क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जेएस वालिया में उतना अच्छा से। दिस इज़ आनंद भूषण, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे आनंद भूषण एंड मलविंदर आहूजा। ये इसका टाइटल पेज ऐसा है। लाइब्रेरी में आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। सो